مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میرا نام ہنا ہے اور میں خداوند کی خادمہ۔ خداوند نے خوبصورت موقع میری زندگی میں بخشا کہ میں آپ تک خداوند کا خوبصورت کلام آپ تک پہنچا سکوں، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن وقت کے لیے کہ خداوند نے خوبصورت دن دیا کہ میں آپ تک خداوند کی محبت کو جو خداوند نے ہم سے کی اسے آپ تک پہنچا سکے، تاکہ خدا اس کلام کے وسیلہ مجھے اور آپ کو بھی کثرت کی برکت عطا فرمائے۔ آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ خداوند نے جو ہمارا آج کا کلام کا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند کی محبت، جو کہ خدا نے ہم سے محبت کی، اور آج ہم خداوند کی بے شمار محبت کو دیکھیں گے کہ خداوند نے جو ہم سے محبت کی، اس محبت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو محبت ہم سے کی اس محبت کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، اور اس محبت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرتے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم کلام کے وسیلہ آج بہت سی خداوند کی محبت کی باتوں کو سیکھیں گے، تاکہ خدا ہماری زندگیوں میں جو خدا نے ہم سے محبت رکھی اس محبت کے وسیلہ ہمیں بھی خدا کے ساتھ کیسی محبت سے چلنا چاہیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور 16ویں آیت میں خدا نے فرمایا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے یسوع المسیح ناصری کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ لیکن یہ خداوند کا بہت فضل اور اس کا رحم ہماری زندگیوں میں ابھی خداوند نے ہم پر ظاہر کیا کہ ہم جو خداوند کے بیٹے یسوع المسیح ناصری کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، خداوند نے ہم پر یہ رحم کیا کہ ہم خداوند کو پہچانیں، ہم اس کے بیٹے یسوع المسیح کو پہچانیں، اس کی محبت کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، تاکہ ہم خدا کے پاک خون سے جو دھل جائیں اور اس محبت کو یاد رکھیں جو خداوند نے ہم سے کی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کیسا افضل خدا ہے، جس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے قربان کر دیا، تاکہ ہم جتنے خداوند کے خون سے خریدے گئے ہیں ہم نجات پا سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی خداوند کی کون سی محبت تھی، ایسی خداوند کی کون سی ایسی بات تھی جو خداوند نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو دنیا کے لیے قربان کر دیا کہ ہم خداوند کے بیٹے یسوع المسیح کو موت کو، اس کے فدیے کو یاد رکھیں، اسے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خداوند کی محبت کے جیسی کوئی محبت نہیں، کوئی محبت جو خدا نے ہم سے کی وہ دنیا میں کوئی محبت ہم سے نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہر وقت خداوند کی محبت کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے آخر کیوں ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں ہم بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا سکے۔ خدا نے کیوں محبت ہم سے ایسی کی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنے آپ کو قربان کرے اور وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نہ سوچا بلکہ دنیا کے لیے قربان کر دیا۔ آئیں ہم اس بات پر غور و توجہ کریں، خدا نے ایسی کون سی محبت اپنے لوگوں سے کی کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کا خداوند نے فیصلہ کیا۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے کہ خداوند کی ایسی کون سی ایسی برکات، ایسی کون سی خداوند کی جو 16 خوبیاں محبت میں پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں دنیا میں بھیجا، کیوں انسانوں کے لیے قربان کیا، کیوں انسان اس محبت کے لیے نجات پا سکے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں 13واں باب
और पहली आयत से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या जनजनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों का कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक हो, कामिल हो कि पहाड़ों को मिटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आए मेरे अजीज़ों, हम देखें कि खुदावंद ने ऐसी मोहब्बत दुनिया में रखी कि अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम निजात पा सकें। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत का जो है वो मोहब्बत की बात हमसे की कि हम जितने खुदा के लोग हैं, हम जितने खुदावन पर ईमान रखते हैं, हम जितने खुदावन को जानते हैं, हम खुदावन की खिदमत करते हैं, हम खुदावन के हजूर में झुकते हैं, हम खुदावन को देखते हैं, हम हर रोज खुदावन के हजूर में झुककर घंटों घंटों दुआ करते हैं और हम खुदावन से कहते हैं कि ए खुदा, हमें अपने कामों बातों के लिए, हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, हमें खुदा उन लोगों के दरमियान लेकर जा खुदावन जो अभी तक तेरे बेटे यीशु अल मसीह के खून से ना धुल सके, हमें उनके दरमियान में लेकर जा। लेकिन मेरे अजीजों, अगरचे हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, अगरचे हम हमारे दिल में, हमारी जिंदगियों में अगरचे मोहब्बत नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगियों में सब कामों से ज्यादा जरूरत है कि सबसे पहले हम खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के लिए पहले अपने दिल में मोहब्बत रखें, अपनी सोच ख्यालों को पाक करें, साफ करें, तो फिर हम खुदावंद के लिए अपने आप को सर्फ कर सकते हैं, फिर हम खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं, फिर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। और अगरचे हम अपने आप को खुदावंद के गवाह कहें, अगरचे हम अपने आप को बहुत आलमाना तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर हम खुदावंद की मोहब्बत से भी खाली हैं, फिर भी हमारे अंदर भी कलाम नहीं है, फिर हम खुदा के गवाह नहीं हैं। अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो फिर हम ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच हैं। अगर हमारी जिंदगियों में खुदावंद के नाम के साथ अगर हम चलते हैं तो उसमें मोहब्बत को अव्वल दर्जा नहीं देते, अगर हम खुदावंद में मगन होकर किसी से मोहब्बत नहीं रखते तो फिर हमारी खिदमत करना वो हमें रवा नहीं है। हम देखते हैं कि अगर हमें नबूवत मिले और कुल भेदों का हमें जो है वो कुल इल्म की वाकफियत हमसे हो कि हम ये बरकत भी हमें खुदा ने दी है, ये बरकत भी हमें खुदा ने दी है, खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया, खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी, और मोहब्बत ना रखे तो फिर हम कुछ भी नहीं जानते। और लिखा है कि पहाड़ों को मैदान कर दूं और मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी फायदा नहीं है। सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में इस तरह ले कि खुदावंद के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगरचे हमारे पास कुछ नहीं है, खुदा की मोहब्बत है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, अगर हम अमीर हैं, अमीर तरीन हैं, अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, और अगर हम अपने आप को जो है वो गरीबों के लिए सर्व कर दें, या हम यहाँ तक भी कह दें कि हम अपना बदन जो है वो जलाने के लिए भी दे दें, और अपनी ज़िंदगी में अगर हम मोहब्बत ही ना रखेंगे तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खुदा ने सबसे अव्वल दर्जा मोहब्बत को दिया है। क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदावंद में अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को दावत दें।
अगर हम मोहब्बत में कायम रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हम मोहब्बत में ना होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखा है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती और बेहतरी नहीं चाहती। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत एक ऐसी है कि अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम जितने मोहब्बत रखने वाले हैं, अगरचे हम किसी पर एहसान करते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमारी मोहब्बत को कुछ भी ऐसा फ़ायदा लेने का नहीं होगा कि हम इसके, अगर हमने मोहब्बत की है तो हम मोहब्बत को जो है, अगर वो हमसे मोहब्बत करता है तो हम भी बदले में उससे मोहब्बत ही मांगे। अगर हम एक से मोहब्बत करते हैं और दूसरा भी हमसे मोहब्बत करे तो ये मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मोहब्बत वो है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, अगर कोई आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, फिर भी आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं, फिर भी आप उससे वफादारी से चल रहे हैं, फिर भी आप उसे अपने लिए अपनी जान से बढ़कर उससे प्यार कर रहे हैं, तो आप में खुदा की मोहब्बत है। मोहब्बत हसद नहीं करती, यानी कि अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत है और हमें कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा तो इसमें हमें किसी के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें जो है वो मोहब्बत किसी से फ़ायदा लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। हमें मोहब्बत किसी से ऐसा मेल मिलाप करने के लिए नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं इससे मोहब्बत करूँगा तो इससे मुझे ये फ़ायदा मिल जाएगा, अगर मैं इससे मोहब्बत करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा। मेरे अजीज़ों, कभी भी लालच की मोहब्बत, कभी भी फ़ायदे की मोहब्बत खुदा किसी से नहीं करता, बल्कि खुदा मोहब्बत ऐसी रखता है कि खुदा इंसानों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, वो मोहब्बत करता है, वो रहम करता है, वो तरस करता है। तो मुझे और आपको भी जरूरत है कि हम हर एक के लिए क्या करें, अपनी जिंदगियों में मोहब्बत को कायम रखें। अगर हम मोहब्बत नहीं रखेंगे तो फिर हमारी खिदमत करना वो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, हमें फिर उस खिदमत से कुछ फ़ायदा नहीं है अगर हम मोहब्बत ना करते होंगे। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत कभी भी शेखी नहीं मारती। हालेलुया। मोहब्बत क्या करती है? कभी शेखी नहीं मारती। मोहब्बत जो है वो इंसान को जो है वो हमेशा नेकी की राह की तरफ लेकर जाती है, एहसासमंदी की राह पर लेकर जाती है। मोहब्बत हमेशा मुआफ करती है। मोहब्बत किसी की बात पर, किसी के कामों पर मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती कि अगर ये मुझसे नफरत करता है या ये मेरे खिलाफ बोलता है या इसने मेरे खिलाफ फलां शख्स से ऐसी बात की है, तो क्या हम अगर हम सुन ले कि इसने ये बात या मेरे खिलाफ की है, मेरे लिए ये लफ्ज बोले हैं, तो क्या हम अपने खुदा की मोहब्बत को भूलकर उसे क्या करें कि दोबारा फिर उसी की तरह उसे रिएक्ट। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद और खुदावंद की खूबसूरत बातों को सीखेंगे। वेलकम बैक। तो हम खुदावंद की खूबसूरत बातें सीख रहे थे मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत जो है वो हमें क्या सिखाती है। मोहब्बत हमें मुआफ़ करना सिखाती है, मोहब्बत हमें रहम करना सिखाती है, मोहब्बत हमारे दिलों में एहसास को पैदा करती है, मोहब्बत हमें खुदा की तरफ लेकर जाती है, मोहब्बत हमें खुदावंद के साथ रूबरू करना सिखाती है। मोहब्बत हमें खुदावंद के मोहब्बत को देखते हैं कि खुदावंद ने भी हमसे बहुत सी मोहब्बत की, और हम हर बात काम पर हम खता करते हैं, हम इतने दिन में गुनाह करते हैं, लेकिन खुदा हमेशा हमें मुआफ़ करता है। खुदा हमेशा हमसे मोहब्बत रखता है, वो कभी भी हमें भटकने नहीं देता, कभी भी हमें गुमराह नहीं होने देता, कभी भी वो हमारी गलतियों को हिसाब में नहीं लाता, बल्कि खुदावंद हमारी गलतियों को मुआफ़ करता है, हमें उन गलतियों को तर्क करता है। फिर हमें हर रोज़ खुदावंद एक नया मौका दे देता है कि फिर हम दोबारा से खुदावंद के नाम के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को स्टैंड कर सके। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अगरचे हम भी अगर एक दूसरे से नाराज़ हैं, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हैं,
अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हम एक दूसरे से हमारी बन नहीं आ रही, ख्वाह वो बहन भाई हो, ख्वाह वो माँ बाप हो, ख्वाह कोई और आपके डीकन रिश्तेदार हो, जिनमें आप अब बिल्कुल फंस चुके हैं, जिनमें आप निकल नहीं सकते और आप के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है, तो मेरे अजीजों खुदावंद की मोहब्बत को याद करें, खुदावंद के एहसास को याद करें कि हमारे लिए भी जब हम गुनाह में थे, जब हम खुदा गुनाह की मजदूरी में थे, जब हम गुनाह कर रहे थे, जब हमने खुदावंद ने जब हम गुनाह हद से पार हो चुका था, तो खुदावंद ने क्या किया कि हम पर भी रहम किया। खुदावंद ने हमें भी इस लायक बनाया कि हम क्या करें, अपने आप को जो है वो खुदावंद के नमूने को देखे कि खुदावंद ने भी हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा ताकि लोग गुनाह से क्या हो, आजाद हो जाएं, गुनाह के ढेर से उठ जाएं, गुनाह की दलदल से निकल जाएं। तो खुदावंद के बेटे यसु अल मसीह नासरी ने क्या किया कि हमारे वास्ते अपने ऊपर क्या किया, अपने कंधों पर क्या किया, हमारे गुनाहों का बोझ उठा लिया। उसने हमारे तमाम गलती खताओं को, हमारे गुनाहों को क्या किया कि मुआफ कर दिया और एक और नई जिंदगी दे दी कि हम क्या करें कि हम नई जिंदगी में अपने आप को ढाल लें। हमें खुदा की मोहब्बत को हमेशा याद रखना चाहिए कि खुदावन ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी और वही मोहब्बत को देखते हुए हमें भी खुदावन की तरफ माइल होने की जरूरत है। वही मोहब्बत को हमेशा याद करने की जरूरत है। अगर कोई आपके खिलाफ है, अगर कोई आपके साथ बेइंसाफी कर रहा है, तो मेरे अजीजों खुदावन की मोहब्बत को याद रखे कि खुदावन ने भी हमें मुआफ किया है, तो हमारा भी फर्ज है कि अपनी जिंदगी में मोहब्बत को रखें और मुआफ करें जैसे मेरे और आपके खुदावन ने मुआफ किया, क्योंकि खुदा मुआफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और मोहब्बत कभी शेखी नहीं मारती। यानी जैसे हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अगर किसी पर कोई ऐसा काम कर दिया है, किसी पर कोई एहसान कर दिया है, तो लोग उसे सुनाते हैं, बताते हैं। लोग क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया, मैंने तुम्हें ऐसे कहा, मैंने तुम्हें वैसे कहा। लोग सुनाते रहते हैं, मैंने उस फला शख्स की मदद कर दी, मैंने उसे ये उसके पास चीज नहीं थी, मैंने उसको दे दी। मेरे अजीजों, अगर हम किसी पर एहसान करते हैं तो मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत है तो फिर हमें सुनाना नहीं चाहिए, बल्कि खुदावंद की मोहब्बत को याद रखना चाहिए कि खुदा हर रोज हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि हमें कभी भी बदकारी से खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि रास्ती से खुश होते हैं। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम मोहब्बत के हैं। मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत आगे बढ़ती है। मोहब्बत किसी के खिलाफ नहीं करती। मोहब्बत दिल में नफरत को पैदा नहीं होने देती। मोहब्बत किसी के खिलाफ नहीं होने देती। मोहब्बत कभी भी हमें किसी से जुदा नहीं करती। अगर आपके और मेरे दिल में खालिस मोहब्बत है, अगर मेरे और आपके दिल में खुदावंद के लिए बेशुमार मोहब्बत है, तो मेरे अजीजों, आज आप और मैं उन तमाम बातों कामों को भूलकर खुदावंद के लिए अपने आप को सर्व करें, खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें कि हमें खुदावंद की मोहब्बत क्या सिखाती है। मुआफ करना खुदा की मोहब्बत सिखाती है। हमें खुदावंद मुआफ करना और हमें खुदा एहसास पैदा करना सिखाता है। खुदा चाहता है कि मेल मिलाप में रहो। खुदा कहता है हमेशा आपस में जुड़े रहो ताकि तुम्हारी बरकत कायम रहे। और मेरे अजीजों, कभी भी शैतान को अपनी जिंदगी में आने की दावत नहीं देनी चाहिए। जिनके अंदर मोहब्बत नहीं होती, वो शैतान को अपनी जिंदगी और दिल में दावत देता है, फिर वो बुरे कामों बातों को पैदा करता है। मेरे अजीजों,
और हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादातर क्या करें, खुदावंद से मोहब्बत करें। अगर हमारे दिल में खुदावंद की मोहब्बत होगी तो मेरे अजीज़ों, हम हमेशा खुदावंद के लिए एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे, हम एक दूसरे के लिए एहसास को पैदा करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा मेल मिलाप में रहेंगे, जैसे खुदा चाहता है कि मैं और आप हमेशा खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहें। एक और हवाला मेरे अजीज़ों हम देखते हैं, गलीतियों की किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद ने क्या फरमाया। 5वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत है। हालेलुया। देखिए कि खुदावंद क्या कहता है कि रूह का फल भी क्या है, मोहब्बत है। खुदा ने मोहब्बत पर इतना जोर दिया है कि हमें हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। खुदावंद ने रूह जो है वो भी फल मोहब्बत को है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अजीज़ों हमेशा खुदावंद के लिए अपने आप को खिदमत में अगर हम सर्व करते हैं तो मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के लिए हसत रखना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के लिए नफरत रखना, गुस्सा करना, ये मेरे अजीज़ों शैतानी काम है। लेकिन उन सबों से तर्क करके, तौबा करके हमें खुदावंद की तरफ माइल होना है, क्योंकि हमारा खुदा क्या है, मोहब्बत है। और मेरा खुदा मोहब्बत सिखाता है, आपका खुदा मोहब्बत सिखाता है। मेरे अजीज़ों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कलाम की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, आज हम मोहब्बत को सीखें कि खुदा हमें मोहब्बत में मुआफ़ करना सिखाता है, खुदा मेल मिलाप को बढ़ाना चाहता है। खुदा मेरा और आपका अगरचे खुदा के साथ मेल मिलाप रहेगा तो वो भी मोहब्बत के साथ रहे। तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमारा ये चाहता है कि हम हमेशा जुड़े रहें, ख्वाह वो माँ बाप हो, ख्वाह वो भाई बहन हो, ख्वाह वो रिश्तेदार हो, मोहब्बत की वजह से जुड़े रहते हैं। अगर हम जुड़े रहेंगे, ये कलीसिया जो है, कलीसिया भी हमारी क्या है, मोहब्बत है। कलीसिया को भी अगर हम देखते हैं, खादम हैं, ठीक है, और जितने भी कलीसिया के मेंबर्स हैं, अगर वो जैसे हमने अभी करंथियों की किताब में देखा, हमने सुना हसद के बारे में, तो मेरे अजीज़ों कि हमें कभी भी किसी भी, ख्वाह वो खादम हो, ख्वाह वो कलीसिया का कोई मेंबर हो, ख्वाह कोई भी हो, हमें किसी से भी हसद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदावंद की मोहब्बत में रहकर हर रोज़ हमें भी खुदावंद से क्या करनी है, बरकत मांगनी है। हर रोज़ हमें खुदावंद के हजूर में झुकना और हर रोज़ हमें खुदावंद के लिए अपने आप को ताबिया करना और मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत के लिए खुदा के हजूर में दुआ किया करें कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में मोहब्बत को पैदा कर। खुदावंद हम हमेशा तुझसे मोहब्बत करे जैसे तू हमसे मोहब्बत रखता है। खुदा हम भी तुझसे मोहब्बत करें और तेरी मोहब्बत के वसीला, तेरी पैगाम, तेरा कलाम हम लोगों के दरमियान, लोगों के पास लेकर जाएं, ताकि लोग अपने उन तमाम कामों से तौबा करें जिससे खुदावंद तू नफरत रखता है, जो काम तेरे हजूर में खुदावंद तुझे नामंजूर है, जो तूने हमें सिखाया कि हर रोज हम अपने सलीब उठाएं और तेरे पीछे चले। खुदावंद हमें ऐसा कर कि हर रोज हम तेरे पीछे चले, मोहब्बत रखें, प्यार रखें, एहसास रखें। खुदावंद हमेशा हम अपने आप को तेरे हजूर में सर्व करते रहे। मेरे अजीज़ों, हमेशा मोहब्बत को अव्वल दर्जा दीजिएगा, हमेशा अव्वल दर्जा। खुदावंद हमेशा अव्वल दर्जा जो है वो अपने मोहब्बत रखने वालों को देता है। इसी तरह हमें भी खुदावंद के हजूर में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोहब्बत में सर्व करने की ज़रूरत है। अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर हम ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच हैं, फिर हम खाली हैं, फिर हम में कोई खिदमत नहीं है, हम में कोई खुदा की बरकत नहीं है, हम में कोई खुदा की ब्लेसिंग नहीं है, अगरचे हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मोहब्बत जो है वो बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ कर देती है, मोहब्बत जो है वो बड़े बड़े गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। तो हमें हमेशा अपने अंदर मोहब्बत को, खुदा के कलाम को हमेशा रखने की ज़रूरत है। हमारी रूह जो है वो मोहब्बत के बगैर खाली है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अजीज़ों हमें कोशिश करनी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा के वादों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखें और मोहब्बत से हमेशा, अगर हम खिदमत करते हैं वो भी मोहब्बत से करें, घर में अगर हम कुछ करते हैं वो भी मोहब्बत से करें, क्योंकि खुदा जो है वो सारे कामों को करने की कुदरत रखता है। जैसे खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को जो है वो कुर्बान कर दिया ताकि उसकी मोहब्बत हम पर ज़ाहिर हो कि उसने अव्वल दर्जा अपने बेटे को नहीं बल्कि अपने कायनात को दिया, कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी ताकि हम क्या करें, बच जाएं। हालेलुया। तो हमने खुदा की मोहब्बत को हमेशा याद रखना है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। हमें भी ज़रूरत है हम खुदा की मोहब्बत के लिए उसके बेटे के हमेशा उस कामों को याद रखें जो उसने हमारे वास्ते जुल्म और सितम को सहा। उस मोहब्बत को याद रखें कि खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने बेटे को जब कुर्बान किया तो उसने क्या कुछ नहीं सहा। तो उसके तमाम बर्दाश्त पर हमें जो है वो याद रखने की ज़रूरत है और हमेशा खुदावंद से जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त जो हम देख रहे हैं ये वक्त हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, बल्कि खुदावंद ने फरमाया कि हमें हमेशा जागते रहना है और दुआ में मशगूल रहना है ताकि आजमाइश में ना पड़े। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदावंद ने मेरे और आप तक पहुंचाया। ये खुदावंद की मोहब्बत जो मैंने आप तक पहुंचाई और मुझे खुदावंद के इस कलाम से जो बरकत मिली है, मैं ईमान रखती हूँ कि इस कलाम के वसीला खुदा ने आपकी ज़िंदगियों में भी बरकत को नाजिल फरमाया है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मुझे मौका बख्शा था कि मैं खुदावंद के इस पैगाम को आप तक पहुंचा सकूं, और मैं शुक्रगुजार ही करती हूं पैगाम इलाही की, इस प्रोग्राम की और खुदा के खादमों की पूरी टीम की शुक्रगुजारी करती हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं इनके लिए बड़ी बरकत की दुआ करती हूं कि खुदावंद हमेशा इन्हें इसी तरह अपने कामों में, खुदावंद इन्हें अपनी खिदमत में इतना ज़्यादा और बढ़ाए ताकि ये खुदावंद के नाम को इसी तरह इज़्ज़त जलाल देते रहे। और उम्मीद रखते हैं, ईमान रखते हैं, बल्कि हम ईमान रखते हैं कि आपने और मैंने इस कलाम के वसीला हमने कसरत दी बरकत पाई है। आमीन।